ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار وہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے نا، ثانیہ نے کہا تو آیت نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ سامنے دیکھتے ہی اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا، کیونکہ سامنے برہان مرتضیٰ کھڑا تھا جو آیت کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ آیت کو وہ ایکسٹرا ایفیشنس لگا تھا، اس کا حد سے زیادہ سمارٹ بننا، اوور کانفیڈنٹ ہونا اور ہر دوسری تیسری لڑکی کے ساتھ فری ہونا آیت کو بہت برا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ پیسے کو شو آف کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ کیا ہوا، یہ منہ کے زاویے کیوں بنا رہی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں کوئی کڑوی چیز چبا لی ہو، ثانیہ نے آیت کے تاثرات دیکھتے پوچھا، جس پر آیت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کو دیکھنے سے اچھا ہے کہ میں کوئی کڑوی چیز ہی چبا لوں، آیت نے بے پرواہی سے کہتے اپنا حجاب ٹھیک کیا تھا۔ ایسے تو مت کہو یار، کتنا ہاٹ بندہ ہے، میں تو پوری کی پوری فدا ہو گئی ہوں اس پر، کاش کہ یہ مجھے بھی لفٹ کروا دے، ثانیہ نے ٹھنڈی آب بھرتے کہا تو آیت کو اس کی بات بالکل پسند نہ آئی تھی۔ فار گاڈ سیک ثانیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لو، دنیا میں لڑکوں کا کال پڑ گیا ہے جو تم اس چھچوندے پر فدا ہو رہی ہو۔ اس کی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ کتنی چیپ حرکتیں کر رہا ہے، میرا تو اسے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، آیت نے برا سا منہ بناتے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ثانیہ برہان مرتضیٰ کی شان میں مزید کچھ کہتی، آیت اپنے ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کلاس میں جا رہی ہوں، اگر تمہارا دل برہان مرتضیٰ کی تعریفوں سے بھر گیا تو کلاس میں آ جانا، کیونکہ آج ٹیسٹ ہے اور مجھے کوئی شوق نہیں پروفیسر سے اپنی بے عزتی کروانے کا، آیت نے کہتے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کی نظریں اسی سمت اٹھیں جس طرف برہان مرتضیٰ کھڑا تھا، اتفاق سے وہ بھی اسی وقت اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ آیت نے ایک اچپٹی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ نیوی بلو جینز جو کہ جدید فیشن کے تحت گھٹنے سے پھٹی ہوئی تھی، ہاف سلیوز کی آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ جس سے اس کی کثرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے، بائیں ہاتھ کی کلائی پر مہنگی گھڑی تھی جبکہ دائیں بازو پر مختلف بینڈز باندھے گئے تھے، سر پر سفید رنگ کی کیپ تھی جس سے اس کے بالوں کا پورا چھتا نکل کر ماتھے پر پڑا ہوا تھا، چہرہ بالکل کلین شیو تھا، پیر برانڈ کے جوتوں میں مقید تھے۔ اس سے پہلے کہ آیت اس سے اپنی نظریں ہٹاتی، برہان مرتضیٰ نے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے سامنے نگاہ اٹھائی تھی۔ آیت کو خود کی طرف دیکھتے پا کر اس کے لبوں پر عذلی مسکراہٹ در آئی۔ اس نے خاص ادا سے اسے دیکھتے اپنی بائیں آنکھ کا کونا دبایا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی طرف فلائنگ کس بھی اچھالی جو آیت کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ آیت اس کی اس بے باکانہ حرکت پر غصے سے سر تا پیر سرخ پڑ گئی تھی۔ یو ایڈیٹ، بدتمیز، جاہل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ بے شرموں والی حرکت کرتے کی؟ آیت تن فن کرتے فوراً سے اس کے سر پر جا پہنچی تھی۔ ہائے بیوٹیفل گرل، کیا ہوا، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے برہان مرتضیٰ نے ہلکے پھلکے اور دوستانہ لہجے میں کہا تھا، ایسے کہ جیسے ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہ ہو، بلکہ وہ تو یوں تھا کہ جیسے ان دونوں کا پرانا ساتھ ہو اور دونوں آپس میں بے تکلف ہوں۔ تم؟ آیت نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب واہی کیے تھے جب ثانیہ وہاں پہنچ گئی۔ آیت جلدی چلو، اب تمہیں کلاس سے دیر نہیں ہو رہی کیا؟ پروفیسر کو میں نے ابھی کلاس میں جاتے دیکھا ہے، اگر وہ ہم سے پہلے پہنچ گئے تو جانتی ہو نا پھر کتنی بے عزتی ہوگی، جلدی چلو۔ ثانیہ نے ہارتی نظروں سے برہان مرتضیٰ کی طرف دیکھتے آیت کو کھینچتے ہوئے وہاں سے کلاس کی طرف لے جانے لگی تھی۔ وہ شارٹ کٹ گئی تھی، اسی لیے پروفیسر کے کلاس میں پہنچنے سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ شکر ہے خدا کا بچت ہو گئی، ورنہ تو بہت بے عزتی ہوتی، اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی ثانیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پرسکون سانس خارج کی، جبکہ آیت لال بھبو کا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں میں بار بار برہان مرتضیٰ کی وہ حرکت آ رہی تھی۔ آیت، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اسے الجھ رہی تھی تم؟ ثانیہ کو یاد آیا تو وہ آیت کی طرف دیکھتے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ اسے برہان مرتضیٰ کی حرکت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے اس نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے؟ جیسا چیپ وہ خود ہے ویسی اس کی حرکتیں بھی ہے۔ تم ویسے ہی مجھے وہاں سے لے آئی، ورنہ میں آج اس کا منہ توڑ دیتی، بدتمیز انسان۔
आयत भरी बैठी थी, सानिया के पूछते ही शुरू हो गई। ऐसा भी क्या हो गया आयत, मुझे भी कुछ बताओ आखिर। सानिया ने उसे नासमझी से देखते पूछा तो आयत ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनते ही सानिया ने हैरत से आयत की तरफ देखा। सीरियसली आयत, तुम बस इस वजह से उससे लड़ रही थी? सानिया ने बेयकीनी से आयत से पूछा था। उसे तो शदीद सदमा लग गया था। वो खुले माहौल से ताल्लुक़ रखने वाली थी। इस माहौल में ये फ्लाइंग किस और आंख मारना सब कॉमन बातें थी। तभी तो उसे आयत के भड़कने पर हैरत हो गई थी। मैं सिर्फ लड़ नहीं रही थी सानी, अगर तुम मुझे लेकर ना आती तो मैं उस बदतमीज़ को अच्छी तरह सबक सिखाती। आयत का गुस्सा अब तक कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इससे पहले कि सानिया कुछ कहती, प्रोफेसर जमाल क्लासरूम में दाखिल हुए, जिसके बाद पूरी क्लास में मौत के जैसा सन्नाटा छा गया। सब इंतहाई ध्यान और खामोशी से लेक्चर सुनने लगे थे। क्या बुरहान, वो लड़की तुम्हें इतना कुछ बोल गई और तुम चुपचाप खड़े रहे, कुछ कहा क्यों नहीं उसे? मोइस हमदानी ने बुरहान मुर्तज़ा के कंधे पर हाथ रखते कहा तो बुरहान मुर्तज़ा मुस्कुराया था। अरे यान, इन मिर्चियों के साथ ही तो रौनक लगी रहती है। अभी इतना कुछ सुना कर गई है, मैंने आगे से कुछ नहीं कहा ना, तो देखना वो लौट कर आएगी और ख़ुद माफ़ी मांगेगी। बुरहान मुर्तज़ा पूरे एतमाद से बोला था। मोइस हमदानी ने कंधे उचका दिए थे। वो अब तक बुरहान की केमिस्ट्री समझ नहीं पाया था। दोनों एक साथ अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दिए। बुरहान मुर्तज़ा मशहूर बिजनेस टाइकॉन मुर्तज़ा मलिक का इकलौता बेटा था और उनकी तमाम तर खुशियों का महवर भी। मिसेस मुर्तज़ा बुरहान के बचपन में ही उन्हें छोड़कर अपने अब्दी सफ़र पर रवाना हो गई थी। मुर्तज़ा साहब ने ही बुरहान को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। ये उन्हीं के बेजा लाड और प्यार का नतीजा था कि वो किसी हद तक बिगड़ गया था, लेकिन अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ उसने मुर्तज़ा साहब से खुफिया रखी हुई थी। जो कुछ भी था, लेकिन उसके दिल में मुर्तज़ा साहब का काफ़ी डर था। इस वजह से वो उनसे काफ़ी झिझकता था। इन दिनों वो यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में था। मुर्तज़ा साहब एक बिज़नेस टूर पर उन दिनों मुल्क से बाहर थे, इसलिए बुरहान मुर्तज़ा आजकल खूब मौज मस्ती में था। उसे उन दिनों खूब आज़ादी मिली हुई थी। वह यूनिवर्सिटी में सिर्फ मौज मस्ती के लिए आता था। यहाँ से फारिग होने के बाद दोस्तों के साथ मिलकर सैर सपाटे करने निकल जाता और फिर रात गए तक सब बाहर घूमते रहते। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी वजीह थी, बला का हैंडसम था। यूं ही लड़कियां उस पर नहीं मरती थीं, मगर उसके लिए यह सब कुछ शुगल मेले से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था और ना ही वो अगले कुछ सालों तक इस बारे में सोचना चाहता था। अभी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को फुल इंजॉय करना था और वो यही कर रहा था। हर हफ्ते वो एक नई लड़की के साथ होता, मगर ये सब कुछ सिर्फ फ्लर्ट की हद तक ही था। उसने कभी हुदूद से तजावुज़ ना किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मुर्तज़ा साहब तक ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसी बात हो। हाँ हीरो, अब बताओ कहाँ जाने का इरादा है आज? वो क्लास लेकर बाहर निकला तो उसके दोस्त उसके गिर्द जमा हो गए थे। तभी हमाद ने उसे मुखातिब करते पूछा था। अभी तो कोई प्लान नहीं, फिलवक्त मैं कहीं इनवाइटेड हूँ। शाम में मिलता हूँ तुम लोगों से, तब तक तुम लोग सोच लो कि कहाँ जाना है। बुरहान मुर्तज़ा ने सामने से आती लड़की की तरफ देखते कहा और फिर बग़ैर उन सब की सुने वो उसकी तरफ बढ़ गया। आयत सानिया के हमरा बाहर आई तो देखा कि बुरहान मुर्तज़ा एक लड़की को गले लगाए खड़ा था। उस लड़की की ड्रेसिंग काफ़ी ऑकवर्ड थी। आयत ने उसे एक नज़र देखने के बाद दूसरी नज़र देखना तक गवारा ना किया, मगर उस लड़की ने ना सिर्फ उसे गले लगाया था बल्कि उसके गाल भी चूम डाले थे। फिर वो दोनों बाहों में बाहें डालकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए। आयत ने उन्हें जाते नखूद से सर झटका। ये लड़का पसंद आया तुम्हें? है क्या इस बदकिरदार इंसान में? सानिया को देखते वो जताती नज़रों से बोली थी। सानिया चुप रही थी। आयत जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी उसे ये सब समझाना नामुमकिन था, इसलिए उसने चुप रहने में ही आफियत जानी। आयत का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके से था। वालिद एक प्राइवेट इदारे में क्लर्क थे और वालदा हाउस वाइफ थी। सादा और शरीफ लोग थे। उनकी 2 ही औलादें थीं, बड़ी आयत और फिर आयत से 8 साल छोटा उमर, जो घर भर का लाडला था।
पूरे घर की जान उमर में बसती थी। उमर 6 साल का था जब उन पर यह इंकशाफ हुआ था कि उमर थैलीसीमिया का मरीज था। ये सुनते ही सबकी जान पर बन आई थी। उन्होंने उमर का बहुत इलाज करवाया, मगर इस बीमारी से पीछा ना छुड़ाया जा सका। डॉक्टरों ने यही कहा कि अब जब तक उमर जिंदा है उसे ब्लड लगता रहेगा। उसकी ज़िंदगी बचाने का यही वाहिद हल था। उस रोज़ से उमर उन सब के लिए और भी अहम हो गया। आयत पढ़ाई में बेहद अच्छी थी। इंटरमीडिएट में उसने पूरे शहर में टॉप किया था, तभी उसे स्कॉलरशिप दी गई थी। इन दिनों वो स्कॉलरशिप पर शहर की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम थी। अगले रोज़ आयत उजलत भरे अंदाज में यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने डिपार्टमेंट की जानिब जाने लगी, क्योंकि वो बेहद लेट हो चुकी थी। उनकी गली में कोई फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से आना पड़ा था। इस वजह से उसे यूनिवर्सिटी पहुंचने में देर हो चुकी थी। वो सीढ़ियां चढ़ते जैसे ही मुड़ी, तभी अपना सर थाम कर रह गई। सामने से आते बुरहान मुर्तज़ा से उसकी सख्त किस्म की टक्कर हुई। आयत की आंखों के सामने दिन ही में तारे नाच गए थे। तुम अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते, या फिर आंखें किराए पर दे रखी हैं? आयत अपने सामने बुरहान मुर्तज़ा को देखते ही गुस्से से शुरू हो चुकी थी। बुरहान मुर्तज़ा ने भी माथा मसलते उसे देखा, साथ ही साथ उसकी ज़बान के जौहर भी देखे। आर यू ओके स्वीटी? बुरहान मुर्तज़ा ने उसकी सारी बातों को इग्नोर करते बस इतना ही पूछा। उसके स्वीटी कहने पर आयत फिर से भड़क उठी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इन घटिया नामों से पुकारने की? आयत जमील नाम है मेरा, आयत जमील। दोबारा अगर मुझे इन चीप नामों से बुलाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये नाम अपनी उन होती सोतियों के लिए बचा कर रखो जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती हैं। आयत एक ही सांस में कहते नीचे गिरा अपना रजिस्टर उठाकर वहां से जा चुकी थी, जबकि बुरहान मुर्तज़ा बस उसकी पुश्त को घूर कर रह गया था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि कोई लड़की बुरहान मुर्तज़ा को इस कदर बातें सुना कर गई थी। आयत क्लास के बाहर पहुंची तो प्रोफेसर क्लास में आ चुके थे। उसने घड़ी पर वक्त देखा, वो पूरे 20 मिनट लेट हो चुकी थी। बुरहान मुर्तज़ा से बहस के चक्कर में उसे काफ़ी देर हो गई थी। तुम्हें अल्लाह पूछे बुरहान मुर्तज़ा। आयत दिल ही दिल में बुरहान मुर्तज़ा से मुखातिब हुई थी, पर अगले ही लम्हे उसे अपनी सोच पर हैरत हुई। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बुरहान के बारे में सोचने लगी थी। ये मुझे क्या हो गया? मैं क्यों उस चीप इंसान के बारे में सोच रही हूँ? आयत ने खुद से सवाल करते खुद को डपटा था और फिर क्लास की जानिब बढ़ गई। जानती थी कि आज प्रोफेसर से उसकी अच्छी क्लास लगेगी, मगर फिर भी वो लेक्चर मिस नहीं कर सकती थी। अल्लाह का नाम लेते उसने प्रोफेसर को मुखातिब किया और फिर क्लास में दाखिल हो गई। जैसा उसने सोचा था उसके साथ वैसा ही हुआ था। प्रोफेसर ने उसकी खूब क्लास लगाई, जिसके बाद आयत रुहासी सी अपनी सीट पर जा बैठी। सबके सामने अपनी इतनी बेइज्जती पर उसे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। तभी जो ही क्लास ख़त्म हुई वो फ़ौरन क्लास से निकली और पिछले ग्राउंड में जा पहुंची। तन्हाई पाते ही कब के रुके हुए आंसू आंखों से बह निकले और वो छम छम आंसू बहाते बुरी तरह से रो दी थी। हेलो प्यारी लड़की, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बुरहान मुर्तज़ा जो सिगरेट पीने की गर्ज से इस तरफ आ निकला था, आयत को रोते देखकर वो एकदम से हैरान हुआ और फिर उसके करीब बेंच पर बैठते उसे सवाल पूछने लगा। अपने बेहद करीब बुरहान मुर्तज़ा की आवाज़ सुनते आयत एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपने आंसू पहुँचे। उसी लम्हे बुरहान मुर्तज़ा ने गौर से उसकी तरफ देखा था। पतले खूबसूरत नैन नक्श ऐसे थे जैसे पेंसिल से बनाए गए हों। मेकअप से आरी चेहरा, मस्टर्ड कलर के सिंपल फ्रॉक में मलबूस, साथ ही हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़े जो अब ढलक कर शाने पर आन पहुंचा था। न जाने कैसे उसका हिजाब खुल गया था। लंबे रेशमी बाल जो पोनी की शक्ल में बांधे गए थे, उन सब पर तजाद उसकी गहरी कांच सी रोई रोई आंखें, जिनके किनारे रोने की शिद्दत से लाल हो रहे थे। बुरहान मुर्तज़ा एक पल के लिए उसके खूबसूरत नकूश में डूब सा गया, जब आयत की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में लाकर पटखा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? आखिर क्यों तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? कब से परेशान किए जा रहे हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा आज का दिन ही खराब है जो मैं बार बार तुम्हारे मुंह लग रही हूँ।
आयत ने नफरत से कहा तो बुरहान मुर्तज़ा उसके लहजे में खुद के लिए नफरत देखकर चौंक सा उठा। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने क्या किया? बुरहान मुर्तज़ा उसे देखते नासमझी से पूछने लगा। कुछ मतलब नहीं है, हटो सामने से, तुम्हारे मुंह लगना ही फजूल है, आयत ने कहा और फिर वहां से चली गई, जबकि बुरहान मुर्तज़ा हक्का बक्का उसे जाते देखने लगा था। ये पहली मर्तबा था कि जब वो किसी के बारे में यूं इस कदर संजीदगी से सोच रहा था, और सोच भी ये रहा था कि आखिर इसने उस लड़की का क्या बिगाड़ा जो वो इससे इस कदर नफरत करती है। बहुत सोचने पर भी बुरहान मुर्तज़ा को कुछ याद ना आया था, मगर आयत की अपने लिए नफरत उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। ये सब उसके लिए अनोखी सी बात थी, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि बुरहान मुर्तज़ा किसी लड़की से बात करता तो बदले में वो लड़की उस पर फिदा ना हो जाती। वो जानता था कि लड़कियां उस पर मरती हैं, उसके लिए पागल हैं। उन सब के बीच उसे आयत का ये रवैया काफ़ी अजीब लगा था। तभी बुरहान मुर्तज़ा ने यह सोच लिया था कि वो उससे बात करके पूछेगा कि क्या वजह है। यही सोचकर वो डिपार्टमेंट की जानिब आ गया था, मगर इस वक्त के बाद उसे आयत एक मर्तबा भी नजर ना आई, क्योंकि आयत छुट्टी लेकर घर जा चुकी थी। आयत, तुम इतनी जल्दी आ गई, सब खैरियत तो है? ये तुम्हारा चेहरा इस कदर लाल क्यों हो रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? आयत जैसे ही घर पहुंची, यास्मीन बेगम उसे देखती परेशान होती फौरन से उसकी तरफ लपकी थी। उसके माथे पर हाथ लगाकर छू कर देखा और फिर उसे लेकर कमरे में आई। आयत, तुम रोई हो क्या? कुछ बताओ भी, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? आयत की सूजी हुई आंखें देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो काफी देर तक रोती रही है। तभी वो परेशान होते उसे पूछने लगी। नहीं मामा, किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ हुआ है, बस मेरे सर में बहुत दर्द है, इसी वजह से मैं रोई हूं। मैं कुछ देर सोना चाहती हूं। आयत ने यास्मीन बेगम से बहाना बना दिया। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसे क्या हुआ है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। न जाने क्यों उसका रोने का दिल कर रहा था। उसका दिल कर रहा था वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, नींद पूरी होगी तो सर में खुद ब खुद आराम आ जाएगा, यास्मीन बेगम कहते साथ उठी, खिड़की के आगे पर्दे बराबर किए और फिर लाइट ऑफ करते कमरे से निकल गई। आयत बेड पर नीम दराज हो गई और फिर न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। दूसरी तरफ बुरहान मुर्तज़ा भी घर पहुंचा तो एक सरप्राइज उसका मुंतज़िर था। मुर्तज़ा साहब वापस लौट आए थे। बुरहान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने अपनी तमाम तर डेटिंग और तमाम तर प्लान मुलतवी कर दिए थे, क्योंकि अब वो कुछ वक्त अपने बाप के साथ गुजारना चाहता था। आयत सोकर उठी तो उसका सर काफ़ी हल्का फुल्का था। वो किसी हद तक फ्रेश हो गई थी। चेंज करते वो बाहर आई, जहां यास्मीन बेगम दिन का खाना तैयार कर चुकी थी। दिन के खाने में आज यास्मीन बेगम ने उसकी पसंदीदा तहदार बिरयानी और साथ रायता बनाया था। मामा, उमर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। पानी पीते आयत ने यास्मीन बेगम से पूछा था। इधर ही है बेटा, जरा तैमूर उसे अपने साथ लेकर गया है, कह रहा था पार्क जा रहा हूं, उमर का दिल भी बहल जाएगा। यास्मीन बेगम ने तफसील बताई तो आयत ने एकदम से पानी का ग्लास हाथ से छोड़ा। मुंह के जाविये फिर से बिगड़ने लगे। मामा, आपने उमर को उनके साथ क्यों भेजा? आप जानती हैं ना उसकी हालत? आयत यास्मीन बेगम से पूछने लगी थी। वो उसकी इस फिक्रमंदी पर मुस्कुरा कर रह गई। अरे बेटा, फिक्र मत करो, यहाँ करीब ही गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। अच्छा है ना, उमर बेचारा पूरा दिन घर में बोर ही तो होता रहता है। यास्मीन बेगम ने बिरयानी को डिश आउट करते आयत को बताया। मामा, बात दूर और करीब की नहीं है। अगर उमर का बाहर जाने का दिल करता तो मैं या बाबा उसे ले जाया करेंगे, लेकिन आज के बाद आप उसे दोबारा किसी के साथ नहीं भेजेंगी। आप जानती हैं वो बीमार है, किसी भी वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर आप उसके मामले में किसी पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? आयत बरहम हुई थी। आयत, वो कोई नहीं है बेटा, तुम्हारे ताया का बेटा है, कितना प्यारा बच्चा है। यास्मीन बेगम आयत को समझाने के साथ साथ तैमूर की तारीफें भी कर रही थी, जो आयत को एक आंख ना भाता था। तैमूर शुरू से ही उसे जहर लगता था
उसका ठरकपन और ठरकी लहजा दोनों ही आयत को जहर से बुरे लगते थे। उस पर भी तजाद ये कि उसकी दोहरी शख्सियत, जिससे उसने हर एक को अपना असीर किया हुआ था। सबके सामने वो इंतहाई शरीफाना और आजजाना तौर पर रहता, इतनी फर्माबरदारी का मुजाहिरा करता कि हद नहीं। यूं लगता था जैसे इस दुनिया में उससे ज़्यादा फर्माबरदार कोई अब तक पैदा ही ना हुआ। मगर जो जो उसे तन्हाई में मिला था, उसकी दूसरी खसलत वही जानता था, ख़ास तौर से लड़कियां। आयत भी उसकी अंदरूनी खसलत जानती थी। वो अजीब पागल इंसान था, कब क्या कर दे उसका कोई भरोसा नहीं था। उन्हें फ़ोन करें मामा और कहें कि अभी और इसी वक्त उमर को घर छोड़कर जाएं, या मुझे लोकेशन बताएं, मैं खुद जाकर उसे ले आती हूँ। आयत फौरन से उठ खड़ी हुई थी। आयत रुक जाओ, बैठो इधर आराम से, मैं फ़ोन करती हूँ उसे, वो खुद ही ले आएगा। यास्मीन बेगम ने उसके तेवर देखते फौरन से फ़ोन उठाते तैमूर को कॉल की थी और उसे कहा कि खाना तैयार हो गया है, वो उमर को लेकर आ जाए। तैमूर कुछ ही देर में उमर को लेकर आ गया। उमर आते साथ आयत से लिपट गया, जबकि तैमूर भी शोक नज़रों से आयत की तरफ देखने लगा। आयत ने उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाई थी, वो उमर को लिए टेबल पर बैठ गई थी। यास्मीन बेगम ने खाना निकालते उन्हें दिया और तैमूर को भी खाने की दावत दी, जो उसने बिना देर किए कबूल कर ली और आयत के सामने वाली कुर्सी पर आन बैठा। आयत का हलक में जाता नवाला बीच में ही अटक गया था, उसे शदीद फंदा लगा था। यास्मीन बेगम ने फौरन से पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया, जिसके बाद उसे कुछ अफाका हुआ। आराम से खाओ आयत, क्या हो गया? यास्मीन बेगम ने उसकी पीठ सहलाते उसे डांटा भी था, जिस पर आयत ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और फिर से प्लेट पर झुक गई। अगर उसे शदीद भूख ना लगी होती तो वो एक पल भी उस गलीज शख्स के सामने ना बैठती, जिसकी नज़रें उसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। न जाने क्यों लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। खाना खाते ही वो फौरन से उमर को लेकर अपने कमरे में आ गई, जहां वो दोनों बहन भाई गप्पे लगाते रहे और फिर एलईडी पर उमर की फेवरेट मूवी देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद उमर ज़्यादा बैठने के बायस थक गया था। वो वहीं से नीचे आया और आयत की गोद में सर रखकर लेट गया। आयत ने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया और फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उमर का चेहरा धूप की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। आयत ने दिल ही दिल में तैमूर को बेपनाह गालियों से नवाजा। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो उमर के साथ इस कदर मोहब्बत क्यों दिखा रहा था, क्योंकि उमर के ज़रिए ही वो आयत तक पहुंचना चाहता था। मगर वो नहीं जानता था कि उसकी ये चाहत कभी भी तकमील को नहीं पहुंचेगी। खैर, वक्त गुजरता गया। अगले कई रोज़ तक आयत का सामना बुरहान मुर्तज़ा से नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों मुर्तज़ा साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी की गई थी और इन दिनों वो अस्पताल में ज़ैर इलाज थे। बुरहान मुर्तज़ा दिन रात मुर्तज़ा साहब के साथ था और साथ ही साथ वो उनकी गैर मौजूदगी में उनके बिजनेस को भी देख रहा था। इस वक्त भी वो एक अहम मीटिंग अटेंड करने के बाद अस्पताल आया था। कैसे हैं आप डैड? कैसा महसूस कर रहे हैं? बुरहान मुर्तज़ा उनके कमरे में आते खुशगवार लहजे में उनसे पूछने लगा। मैं ठीक हूँ बेटा, काफ़ी बेहतर हूँ। तुम यहाँ क्यों आ गए? घर जाते या आराम करते? मुर्तज़ा साहब ने बुरहान का थका थका सा चेहरा देखकर कहा। मैं ठीक हूँ डैड, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बुरहान मुर्तज़ा उनके पास बैठते बोला तो मुर्तज़ा साहब ने उसे बहुत सी दुआएं दी। आप रेस्ट करें डैड, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ कि वो क्या कहते हैं। बुरहान मुर्तज़ा ने कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकलते डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल दिया। हाय हैंडसम, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। तभी आलिया अचानक से उसके सामने आते उसे देखते हैरान होते हुए बोली थी और साथ ही उसके गले भी लगी थी। वो बुरहान मुर्तज़ा की पुरानी आशना थी। हाय, हाउ आर यू? तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो, बुरहान उसे देखते हुए बोला। इतने वक्त बाद उसे सामने देखकर उसका चेहरा खुद ब खुद हशाश बशाश हो गया था। मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ, तुम सुनाओ, यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? आलिया उसके साथ चलती उसे पूछने लगी थी। आलिया की आदत थी हाथ हिला हिला कर बातें करना, और वो इस वक्त भी ऐसे ही हाथ हिला हिला कर बातें करती जा रही थी।
जबकि उसका हाथ लगा और सामने से आती आयत के हाथ से एक छोटी सी शीशी गिरकर टूट गई। आयत ने सदमे से उस शीशी की तरफ देखा। वो उमर को खून लगवाने आई थी। तभी डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन मंगवाया था जो काफ़ी महंगा था, लेकिन अभी वो टूटकर रेजा रेजा हो गया था। तुम देखकर नहीं चल सकती? कितना नुकसान कर दिया मेरा। ओह अच्छा, तुम इसके साथ हो। तभी मैं कहूँ मेरा दिन तो ख़राब होना ही था। वैसे एक मशवरा दूँ, ये हॉस्पिटल है, कोई डेटिंग की जगह नहीं। अगर डेटिंग ही करनी है तो किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाएं। कम से कम आपकी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। तेज तेज लहजे में वे कहती उन दोनों को हक्का बक्का छोड़ते वहां से जा चुकी थी, जबकि मारे गुस्से के आलिया का चेहरा यकदम लाल हुआ था। इसकी इतनी मजाल, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, आलिया कहती उसकी तरफ लपकी, लेकिन उससे पहले ही बुरहान ने बीच में ही उसे पकड़ लिया। छोड़ो बेबी, जाने दो, कुछ लोगों को आदत होती है, दफा करो, बुरहान मुर्तज़ा ने कहा और फिर आलिया को साथ लेते कैंटीन की तरफ चला गया, जबकि उसका खुद भी दिमाग खौल रहा था। आयत पर उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। न जाने इस लड़की को क्या मसला था। जितनी मर्तबा भी उसके सामने आती थी हमेशा इसी लहजे और इसी टोन में रहती थी। बुरहान मुर्तज़ा दिल ही दिल में उसे साइको का खिताब दे चुका था। आयत भी उसे दिल ही दिल में ढेरों अलकाबात से नवाजते हुए दोबारा से मेडिकल स्टोर की तरफ गई थी ताकि इंजेक्शन दोबारा से खरीद सके। वक्त कुछ मज़ीद आगे सरका। मुर्तज़ा साहब सेहतयाब होकर अपना काम दोबारा से संभाल चुके थे। वहीं बुरहान मुर्तज़ा ने भी दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसकी रूटीन में बस ये तब्दीली हुई थी कि अब वो यूनिवर्सिटी के बाद मुर्तज़ा साहब के ऑफिस को वक्त देने लगा था। मुर्तज़ा साहब बहुत खुश थे। उस रोज़ वो यूनिवर्सिटी में था और अपने दोस्तों के साथ खड़ा था जब उसकी नज़र आयत पर पड़ी, जो सानिया के साथ जा रही थी। 1 मिनट, मैं आता हूँ। बुरहान मुर्तज़ा उसकी तरफ देखते अपने दोस्तों से बोला और आयत की तरफ जाने लगा। ओए, किधर जा रहा है? मुइज़ दुरानी ने पीछे से आवाज़ लगाई थी, मगर बुरहान ने उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा आगे जाते आयत का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीज़ी है? आयत उसको देखते एकदम से रुकते हुए बोली। उसने बरवक्त अपने कदमों को रोका था, वरना वो सीधी बुरहान से टकरा जाती। ये बदतमीज़ी है तो फिर आज तक जो कुछ तुम करती रही हो वो सब क्या है? बुरहान मुर्तज़ा ने बाजू पर बाजू बांधते एक स्टाइल से खड़े होते उससे पूछा। मैंने क्या किया है? आयत ने नासमझी से सानिया की तरफ देखते पूछा। वाह, ये अच्छा है, यानी कि मोहतरमा को याद ही नहीं कि उसने क्या किया। अब तक हमारी जितनी भी हादसाती मुलाकातें हुई हैं उनमें तुमने हमेशा मुझसे इंतहाई बदतमीज़ी से बात की है और हमेशा मुझे किसी न किसी चीज़ का कसूरवार ठहराया है। हालांकि मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैंने आज तक कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। फिर तुम्हारी इस कदर बदतमीज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए मैंने कई मर्तबा तुम्हें इग्नोर किया, मगर तुमने ना जाने मुझ में कौन सी अदावत पाल रखी है। तुम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि जहाँ कहीं भी मुझे मिलती हो तुम्हारा रवैया ऐसा ही होता है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हुई है कि जिसकी वजह से तुम यूं मुझे देखते ही मिर्चें चबा लेती हो। बुरहान मुर्तज़ा ने इंतहाई संजीदगी से पूछा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मैं तुम्हें किसी बात का जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ। तुम हटो मेरे रास्ते से, आयत ने सख्त लहजे में कहा था। नहीं नहीं, यूं नहीं, आज तो मुझे जवाब दिए बगैर नहीं जा सकोगी। बुरहान मुर्तज़ा वहीं जम कर खड़ा रहा। यही तवक्को थी मुझे तुमसे, इसीलिए तुम मुझे बुरे लगते हो। तुमने समझा क्या हुआ है तुमको? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? तुमसे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं। तुम्हारी ये खुद पसंदी जहर लगती है मुझे। तुम्हें क्या लगता है हर लड़की तुम पर मरती है? तुम्हारा ये भरम आज मैं तोड़ देती हूँ कि तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि हर लड़की तुम पर मरे। सिर्फ अच्छी शक्लो सूरत होना ही काफ़ी नहीं है, इंसान का किरदार भी अच्छा होना चाहिए। तुम्हें यही बात बुरी लगी है ना कि बाकी लड़कियों की तरह मैं तुमसे इम्प्रेस क्यों नहीं हुई?
या फिर मैंने तुम्हें बाकियों की तरह लिफ्ट क्यों नहीं करवाई? तो कान खोल कर सुन लो मिस्टर बुरहान मुर्तज़ा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिनको तुम अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हो। वो कोई तुम जैसी होंगी जो तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाती हैं। मुझे तुम जैसे बदकिरदार इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही कभी होगी। तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी इन चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आने वाली। आयत ने अच्छी तरह से बुरहान मुर्तज़ा की क्लास ले डाली। उसकी बातें सुनकर बुरहान मुर्तज़ा के माथे पर बल पड़े थे। वो लड़की उसके किरदार पर बात करके गई थी। तुम मुझे यानी बुरहान मुर्तज़ा को चैलेंज कर रही हो? बुरहान दांत पीसते गुर्राया। मैं तुम्हें क्यों चैलेंज करूंगी, जबकि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझती। आयत ये कहते वहां से चली गई थी, जबकि बुरहान मुर्तज़ा ने 16 बार नजरों से उसे जाते देखा। एक मामूली सी लड़की उसे इतनी बातें सुनाकर चली गई थी। उसकी बातों ने बुरहान मुर्तज़ा के गुस्से और जुनून को हवा दी थी। मैं तुम्हारे इस गुरूर को किस तरह तोड़ूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती आयत। जस्ट वेट एंड वॉच। एक वक्त आएगा जब तुम अपने इन्हीं अल्फाज पर पछताओगी। बुरहान मुर्तज़ा ये कहते गहरा मुस्कुराया। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। पूरा मंसूबा तैयार था, बस उस पर अमल करना बाकी था। उसने जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाते वो वापस से अपने दोस्तों की तरफ आया। आयत रुको तो सही यार, मेरी बात तो सुनो। सानिया बमुश्किल भागते हुए आयत तक पहुंची और उसे जाकर रोका। क्या है सानिया? आयत ने ठहरे हुए पूछा। तुम पागल तो नहीं हो गई यार? तुम जानती भी हो तुमने किससे पंगा ले लिया। वो बुरहान मुर्तज़ा है, बुरहान मुर्तज़ा। तुमने बिना सोचे समझे उसको इतनी बातें सुना दी। वो चुप तो नहीं बैठेगा। ऐसे लोगों को तुम नहीं जानती, ज़रा ज़रा सी बात पर दुश्मनी मोल लेते हैं, और फिर उनकी दुश्मनी किस किस जगह तक जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सानिया ने अपने तय उसे समझाने की कोशिश की थी। वो इन सब लोगों से वाकिफ थी, इसीलिए आयत को भी खबरदार कर रही थी। मगर आयत के भेजे में ये बात बैठती तो ना। वो वाकई नहीं जानती थी कि उसने बुरहान मुर्तज़ा से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो चुपचाप क्लास में आ गई, जहाँ आकर उन्हें मालूम हुआ कि आज उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी होनी थी। आयत जो जल्दी घर जाने का इरादा रखती थी, उसके अरमानों पर तो औस पड़ गई। अब छुट्टी 4 बजे होनी थी। उसने बैग से मोबाइल निकाला ताकि घर में उस चीज़ की इत्तला दे सके, मगर अफसोस कि उसका फ़ोन डेड हो चुका था। उसने वापस से उसे बैग में डालकर बैग बंद कर दिया। या अल्लाह खैर। वो जैसे ही अपनी गली में पहुंची, घर के सामने रश देखकर बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। उसने तेज़ तेज़ कदम उठाना शुरू किए और जल्दी से घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर दहल गई। उसके घर में मोहल्ले के तमाम लोग जमा थे। यास्मीन बेगम बेतहाशा रो रही थी, जबकि जमील साहब भी परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। मामा, बाबा, सब खैर तो है? सब ठीक है ना? आप लोग रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? उमर ठीक है? कहाँ है उमर? उमर, उमर कहाँ हो तुम? आयत ने उनसे पूछते साथ उमर को आवाज़ें देना शुरू कर दी थी, जो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। अम्मी बताएं ना, उमर कहाँ है? हर तरफ से मायूस होते वो फिर से यास्मीन बेगम की तरफ आई, जो उसे गले से लगाती बुरी तरह से रो दी थी। आयत को यकदम किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बेटा, वो उमर नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया है। यास्मीन बेगम रोते हुए बोली तो आयत के दिल पर हाथ पड़ा। क्या मतलब है आपका? कहाँ है उमर? ऐसे कैसे कहीं चला गया उमर? यही होगा, आप रुके, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। आयत उन्हें कहती कमरों की जानिब दौड़ी और पागलों की तरह हर तरफ उमर को ढूंढने लगी, मगर उमर होता तो उसे मिलता। वो नाकाम ही बाहर लौट आई थी। यास्मीन बेगम ने उसे बताया था कि वो मामूल की तरह यहीं घर से बाहर कुछ देर के लिए निकला था, मगर वापस नहीं आया। सब लोग उसे दोपहर से हर तरफ ढूंढ रहे थे, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। दोपहर से उनके घर सफ़े मातम बिछा हुआ था। जमील साहब अपने तय हर तरफ अस्पतालों में भी पता करवा चुके थे, मगर सिवाय नाकामी के उन्हें कुछ भी ना मिला था। जमील साहब, आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं?
क्या पता किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए बच्चे को उठाया हो। पास के पड़ोसी ने जमील साहब से पूछा तो आयत के कान खड़े हो गए। दुश्मनी? आयत ने सोचा और एकदम से उसे बुरहान मुर्तज़ा का ख्याल आया। आयत फौरन से बाहर भागी थी। रिक्शा करवाते वो फौरन बुरहान मुर्तज़ा के घर जाकर पहुंची। बुरहान उसे अपने घर में देखकर हैरान हुआ। घटिया इंसान, कहाँ है मेरा भाई? तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर, तुम जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मेरा भाई जहाँ है उसे मेरे हवाले करो। वो बीमार है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे करो, मेरे भाई को बीच में क्यों लाया? आयत बुरहान मुर्तज़ा को देखते ही स्टार्ट हो चुकी थी। शुक्र था कि मुर्तज़ा साहब घर पर नहीं थे। आयत की बातें सुनते बुरहान के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई। दुश्मनी का मतलब तो तुम जानती ही हो ना, दुश्मनी की लपेट में तो सभी आते हैं। बुरहान मुर्तज़ा कहते मुस्कुराया। देखो ये गलत है, वो ठीक नहीं है, उसकी सेहत पहले से ख़राब है, तुम प्लीज़ उसे छोड़ दो। अब की बार आयत का लहजा इल्तिजाया हुआ था। वो उमर के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बदले में मुझे कुछ तो चाहिए होगा। बुरहान मुर्तज़ा ने कहा तो आयत की आंखों में नमी उतरी। देखो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मेरे भाई को छोड़ दो। आयत ने उसकी मिन्नत करते हुए कहा था। तो ठीक है, आओ फिर मेरे साथ, बुरहान मुर्तज़ा ने कहते उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर बाद उसने मौलवी और चंद दोस्तों को बुलाया और वहीं पर आयत से निकाह कर लिया। उमर को छोड़ने की उसने यही शर्त रखी थी। तुम जो चाहते हो वो तो हो गया, अब जल्दी से मुझे उमर के पास ले जाओ प्लीज़। आयत ने रोते हुए बुरहान मुर्तज़ा से कहा, जो निकाह के बाद रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठ गया था और फ़ोन निकालकर स्क्रोलिंग करने में लगा था। मैं तुम्हारे भाई के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बुरहान मुर्तज़ा ने बिना मोबाइल से नज़रें उठाए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? आयत चौंकी थी। मतलब ये कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तुमने दुश्मनी का नाम लिया तो मैंने कहा चलो तुमसे दुश्मनी निकाल लेता हूँ। खैर, तुम मुझे तफसील बताओ तो शायद मैं तुम्हारे भाई के मामले में तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। बुरहान मुर्तज़ा मोबाइल जेब में रखते उसकी तरफ मुतवज्जो होते बोला तो आयत के पैरों तले से ज़मीन निकली। वो उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे निकाह कर चुका था। आयत जल्दी से दरवाजे की तरफ गई। इस वक्त उसके लिए उमर ज़रूरी था। बुरहान से वो बाद में भी निबट सकती थी। बुरहान मुर्तज़ा बस उसे जाता देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने किसी को कॉल मिलाई और आयत की पूरी डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा। कुछ ही देर के बाद उसकी सारी डिटेल्स इसके सामने थी। वो गाड़ी लेता घर से निकला। आयत वहाँ से सीधी घर आई थी, जहाँ उसने देखा कि उमर घर आ चुका था। उसे लेकर जाने वाला तैमूर था, जो बिना बताए उसे लेकर घुमाने चला गया था। सबने तैमूर की बहुत बेइज्जती की थी, मगर तैमूर पर किसी बेइज्जती का कोई असर नहीं हुआ था। वो अपनी ही हाँकता रहा। उसे अपनी गलती लग ही नहीं रही थी। आयत ने भी तैमूर से खूब झगड़ा किया, मगर जब उसने देखा कि इस पत्थर से सर मारने का कोई फ़ायदा नहीं तो वो खामोश हो गई। यही सबसे बड़ी बात थी कि उमर सही सलामत घर वापस आ गया था। सबको सकून आ गया था, मगर आयत का सकून और चैन सब उड़ चुका था। वो जल्दबाजी में गलत कदम उठा चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो बुरहान मुर्तज़ा से छुटकारा कैसे हासिल करे। तभी अगले रोज़ उसे खबर मिली कि बुरहान मुर्तज़ा 2 साल के लिए अमेरिका जा चुका है। आयत ने कुछ सुकून का सांस लिया। अब कम से कम 2 साल के लिए तो वो टल चुका था। 2 साल कैसे गुजर गए कुछ मालूम ही ना हुआ। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आयत इस अरसे में बुरहान मुर्तज़ा को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी, मगर वो उसे ना भुला पाया था। इन 2 सालों के दौरान वो हर लम्हा उसे याद थी। इसीलिए वो जैसे ही वापस आया उसने सीधे आयत के घर का रुख किया। दरवाज़ा किसी छोटे लड़के ने खोला था। बुरहान मुर्तज़ा खुले दरवाजे से सीधा अंदर गया। अंदर उनके घर काफ़ी रश था, शायद कोई तकरीब थी। बुरहान मुर्तज़ा ने सामने देखा जहाँ सोफे पर वो कीमती लिबास में सर झुकाए बैठी थी और एक औरत उसके हाथ में अंगूठी पहना रही थी। बुरहान मुर्तज़ा ने गौर से उसे देखा। हाँ, वो वही थी।
آیت جمیل، کیا ہو رہا ہے یہ؟ برہان مرتضیٰ بولا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو منگنی کی انگوٹھی کیسے پہنا سکتی ہیں؟ برہان مرتضیٰ نے کہا تو سب ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہیں آیت بھی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ برہان مرتضیٰ یوں اچانک سے وہاں آ جائے گا۔ ان کے گھر خوب تماشا ہوا۔ برہان مرتضیٰ نے سب کے سامنے اپنا اور آیت کا نکاح نامہ نکال کر دکھایا، جس کے بعد منگنی کے لیے آئے ہوئے لوگ انہیں برا بھلا کہتے جا چکے تھے۔ آیت کے ماں باپ کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ انہوں نے آیت سے اس چیز کی تصدیق چاہی تھی، جس کی تصدیق اس نے سر ہلاتے کر دی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو سارا سچ بتا دینا چاہتی تھی، مگر جمیل صاحب نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے اپنا ہر رشتہ اور اپنا ہر تعلق توڑتے اسے برہان مرتضیٰ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ پورا راستہ روتے ہوئے آئی تھی۔ گھر پہنچتے برہان مرتضیٰ اسے کمرے میں چھوڑ کر خود کہیں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے وہ آیت کی طرف بڑھایا، جسے آیت نے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ بہت خوش ہوگے نا تم مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یقین جانو تم نے مجھے میرے گھر والوں سے دور کیا ہے نا، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ آیت روتے ہوئے چیخی تھی۔ دیکھو آیت، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ میں تو اچھی طرح سے تمہارے گھر والوں سے بات کرنے کے بعد تمہیں لانے والا تھا، مگر سچویشن ایسی بن گئی اور مجھے غصہ آ گیا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں خود تمہارے گھر والوں سے بات کر کے انہیں سمجھاؤں گا، وہ میری بات ضرور سمجھیں گے۔ برہان مرتضیٰ اس کے پاس بیٹھتے ہمدردانہ لہجے میں بولا تو آیت کو رونا بھول گیا۔ وہ رونا چھوڑ کر برہان مرتضیٰ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ برہان مرتضیٰ اس کو بدلے کے لیے لایا ہے، مگر یہاں تو اس کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی۔ جی ہاں، جب سے وہ یہاں سے گیا تھا تب سے بے چین رہا تھا۔ اسے ہر پل یہ خیال ستاتا رہتا کہ اس نے آیت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ آیت کی روئی ہوئی آنکھیں ہر پل اس کی نظروں کے سامنے پھرتی رہتی تھی۔ اس کا ضمیر اسے ہر پل ملامت کرتا رہتا تھا۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے محض اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دی تھی۔ تبھی وہ لوٹ آیا تھا، یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ آیت سے اس کی مرضی جانے گا، اور پھر اگر اس کی مرضی ہوئی تو اسے پورے عزت اور احترام سے بیاہ کر اپنے گھر لائے گا۔ لیکن جب اس نے آیت کو کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنتے دیکھا تو اسے بہت برا لگا۔ وہ اس کی تھی، اس کے نکاح میں تھی، تو پھر وہ کیسے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن سکتی تھی؟ یہ سوچ کے آتے ہی جیسے برہان مرتضیٰ کو کسی نے تپتے شعلے میں ڈال دیا تھا۔ اسے ایک دم سے غصہ آیا اور غصے میں وہ یہ سب کچھ کر بیٹھا۔ آیت پلیز میرا یقین کرو، میں بہت ندامت میں ہوں۔ جب سے میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے مجھے کسی پل چین نہیں آیا۔ میں وقت کو پیچھے تو نہیں لے جا سکتا، لیکن اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ جہاں تک رہی تمہارے والدین کی بات تو یقین جانو میں ان کو بہت جلد منا لوں گا۔ برہان مرتضیٰ یہ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا، مگر آیت کو سوچوں کے بھون میں گرا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ دل چیخ چیخ کر برہان مرتضیٰ کی باتوں کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ دماغ مسلسل اس کی نفی کر رہا تھا۔ آیت عجیب ششو پنج میں پڑ گئی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ دل اور دماغ کی چھڑی ہوئی اس جنگ میں ہمیشہ کی طرح جیت دل کی ہوئی تھی۔ اپنے دل کی سنتے آیت نے برہان مرتضیٰ کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ برہان مرتضیٰ نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا، اور آیت کے دامن میں اتنی خوشیاں بھر دی تھیں کہ آیت کو ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ اتنی خوشیوں کو سنبھال بھی پائے گی کہ نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی
آپ کو وقت پر ملتی رہے۔